Good morning, students. Welcome back in another lecture of light. In this lecture, we will study about formation of image in concave mirror. Before starting this lecture, we should revise real image and virtual image. ठीक है? देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है? रियल इमेज form when light ray after reflection actually meet at a point. ठीक है? वर्चुअल इमेज क्या होता है? When light ray after reflection appears to meet at a point, यानी लाइट रे जब appears to meet होगा तो कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा. ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है. लेट्स स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन concave mirror. Here is a concave mirror and we have to place the object in different position in front of a concave mirror. In the last lecture, we learned the different terminology of a spherical mirror, pole, focus, and center. Case 1. In this case, object is present at infinity. It means object is present very far from the mirror. ठीक है? When light ray is present at infinity, then light ray from there comes parallelly. ठीक है? तो parallel light ray mirror से strike करता है, and as we know that the light rays which are parallel to the principal axis after reflection from mirror meets and passes from the focus. ठीक है? तो ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये दोनों लाइट रे आ रही है, ठीक है? रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये दोनों लाइट रे मीट होगा फोकस पर, ठीक है? एंड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, देन वी कैन से दैट at focus it form real image. So what are the properties of image? In this case, image is formed at focus, image is point side, image is real, and real image is always inverted. Real image क्या होता है? Inverted होता है. ठीक है, तो केस 1 में क्या था? Object is our present at infinity and image form at focus. ठीक है? Case 2. In this case, object is present between infinity and center. ठीक है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है. हमें देखना है कि इसका इमेज कहां बनेगा. देखिए, इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम 2 लाइट रे चाहिए. ठीक है? देखिए, फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए बी the first light ray is parallel to principal axis. Principal axis क्या है? Parallel. So according to rule 1, when light ray is parallel to principal axis, after reflection from a mirror, it passes from the focus. ठीक है? फोकस से पास होगा. ये हो गया मेरा light ray 1. अब the second light ray, when light ray is passes from the focus, rule number 2 क्या कहता है? When light ray passes from the focus, then after reflection it goes parallel to principal axis. ठीक है? तो सेकंड लाइट रे और फर्स्ट लाइट रे ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलेगा, एंड हियर इज द इमेज फॉर्म. जिस पॉइंट पर ये मिलेगा उस पॉइंट पर क्या बनेगा? मेरा इमेज फॉर्म होगा.
ठीक है, फिर से देखिए कैसे हुआ। मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है, द फर्स्ट लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए बी इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes from the focus. Second light ray passes from the focus, then after reflection it goes parallel to principal axis. ठीक है, इस तरह से जब लाइट रे दोनों को मिलाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद तो ये मैच करेगा। कहां पर मैच करेगा? ये मेरा मैच करेगा सेंटर और फोकस के बीच में। सो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज का प्रॉपर्टी कैसा होगा? यहां पर हम कह सकते हैं इमेज क्या बना था? इमेज बिटवीन द सेंटर एंड फोकस, नेक्स्ट इमेज इज a small size and image is real and image is inverted. ठीक है, रियल इमेज क्या होता है? हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो इमेज का प्रॉपर्टी। अब देखिए हम रूल नंबर 3 पढ़े हैं, when light ray passes from the center, then after reflection it reflects in the same direction. ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज रूल नंबर 1, 2, 3 किसी में से भी दो रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या था? when light ray parallel to principal axis then it passes from the focus. रूल नंबर 2 क्या कहता है? when it passes from the focus then it parallel to principal axis, and here is the rule number 3. It states that when light ray passes from the center then it reflects in the same direction. ठीक है, तो यहां पर मेरा रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 3 से भी यूज करके हम इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रूल नंबर है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेकंड रूल नंबर है passes from the focus, and ये थर्ड रूल नंबर है passes from the center. We can also use rule number 4. when light ray passes from the pole then it reflects by making equal angle of incidence. ठीक है, तो हम लोग रूल नंबर 4 भी यूज कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखिए हम रूल नंबर 1 और 2 को स्कैप कर रहे हैं। 1, 2 हट गया, ठीक। अब कौन सा रूल बच गया मेरा? रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 3 और 4 से भी हम इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इमेज ऑलवेज फॉर्म एट द सेम पॉइंट। हम कोई सा भी रूल यूज करेंगे, इमेज हमेशा सेम पॉइंट पर ही बनेगा। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तभी इमेज का पोजीशन चेंज होगा, नहीं तो इमेज किसी भी रूल से सेम पॉइंट पर फॉर्म होगा। नेक्स्ट केस 3, इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट सेंटर। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेंटर पर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फॉर्म करते हैं इमेज। नाउ रूल नंबर 1, when light ray coming from the object and this is parallel to principal axis, then after reflection it passes from the focus. Now rule number 2, when light ray passes from the focus then after reflection it moves parallel to principal axis. देखिए ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर पर है तो हम लोग रूल 3 उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटर पर ही है ऑब्जेक्ट, तो इमेज को हम सेंटर से पास नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द सेंटर देन इमेज इज फॉर्म ऑल्सो एट द सेंटर। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर पर बनेगा। इमेज सेम साइज का होगा एंड इमेज रियली एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, वी कैन ऑल्सो फॉर्म द इमेज बाय यूजिंग रूल 4। देखिए रूल नंबर 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट passes from the focus. Rule number 2, passes from the focus, light parallel to principal axis. Rule number 3, light passes from the pole, it reflects by making same equal angle of incidence. ठीक है, तो हम यहाँ पर रूल नंबर 1 या 2 किसी को भी क्या कर सकते हैं? स्कैप कर सकते हैं। तो उसमें भी इमेज क्या होगा? वहीं पर फॉर्म होगा। ठीक है, अगर हम रूल नंबर 2 को स्कैप कर दें तो भी यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट केस 4। In this case, object is present between center and focus. ठीक है, फर्स्ट केस में क्या था? इन्फिनिटी पर। सेकंड केस में इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। थर्ड केस में सेंटर पर। और फोर्थ केस में क्या हो गया? सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, then by using rule number 1, when light ray parallel to principal axis then it reflects from the focus. Rule number 2, when light ray passes from the focus then it reflects parallel to principal axis. इस तरह से मेरा इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? मेरा इमेज फॉर्म हो रहा है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। इमेज फॉर्म between center and infinity, image is large size and image form here real and inverted. ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा रूल यूज हो रहा है? रूल नंबर 1 एंड 2। हम इसको रूल नंबर 3 से भी यूज करके बना सकते हैं और 4 से भी यूज करके बना सकते हैं। When light ray passes from the center then it reflects in सेम डायरेक्शन। तो यहां पर हम रूल नंबर 1 और 3 यूज करके भी इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और 4 भी यूज करके बना सकते हैं। तो हमें कौन सा रूल यूज करना है? वी शुड यूज द रूल विच कैन फॉर्म इजिली। ठीक है, जो सबसे आसान रूल ज्यादा होगा उसी को हमको यूज करना है। ठीक है, हम किसी भी रूल को यूज करके इमेज बना सकते हैं, बट जो आसान हमको पड़ेगा, जो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, उसी रूल को हमको यूज करना है। नेक्स्ट केस 5। इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट फोकस। ठीक है, तो देखना इमेज कहां बनेगा? When light rays parallel to principal axis, then it reflects from the focus. ठीक है, now we cannot use rule number 2 because object is present at focus. तो हम क्या यूज करेंगे? रूल नंबर 3, when light ray passes from the center then it reflects in the same direction. अब देखिए, इस केस में देखिए, ये दोनों जो लाइट रे है वो पैरेलल है। ठीक है, यानी कि जो दो लाइट रे पैरेलल है वो कहीं पर मिलेगा नहीं। ठीक है, इट मे हैपेंस दैट इट मीट्स एट इन्फिनिटी। तो जहां पर ये मिलेगा वहां पर इसका इमेज बनेगा। तो कह सकते हैं इसका इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी, और ये बहुत दूर मिलने के बाद काफी बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, अगर मिरर के फ्रंट साइड में मिलता है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा।
बट अगर रियल के बैक साइड में जाकर कहीं मिलता है तो ये क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर मिरर के इनसाइड मिलता है तो वर्चुअल और इरेक्ट, और मिरर के बाहर मिलता है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, सो लास्ट case 6. Now in this case object is present between focus and pole. ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस और पोल के बीच में। सो फर्स्ट we use first rule, when light ray parallel to principal axis then it passes from the focus, and when light ray passes from the center then it reflects in same direction. अब देखिए इस केस में जो इमेज बन रहा है वो डाइवर्ज्ड हो रहा है, तो ये डाइवर्ज्ड रे कहीं पर मिलता नहीं है। तो क्या करेंगे, इस बार जो इमेज को है हमको अपीयर्स टू मीट करना है, तो बैक डायरेक्शन में इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो जब बैक डायरेक्शन में लाइट रे को हम मिलाते हैं तो क्या होगा, मिरर के पीछे किसी पॉइंट पर ये मैच करेगा, तो जहां पर ये मैच करेगा वहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। और हम कह सकते हैं कि इस केस में इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, image is enlarged, image is virtual, and image is erect. So this is very important case of concave mirror. It is the only case in which light ray form behind the mirror. It means image is virtual and erect. ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज in convex mirror and we also learned about the mirror formula. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।